Okay, now. Okay, fine. We have talked about the two things about solid state. We had discussed about what is the limitation. Okay? Okay. Now, when we talk about this topic, अभी हम बात कर रहे हैं, हमने arrangement की starting की, and while doing the arrangements, we talked about the linear arrangement, that is one-dimensional arrangement. तो one-dimensional arrangement की बात करते हुए मैंने आपको ये बताया था that an arrangement can be considered to be one-dimensional arrangement because we are talking about the arrangement of the center of mass. So that is how the center of mass becomes a linear arrangement. अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं, we have to get along with two-dimensional arrangement. देखो, किसी भी arrangement को define करने के लिए हमें कुछ parameters की जरूरत होती है. We need certain parameters. जैसे कि वन डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए मुझे सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस. अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस पता है, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू अरेंज ऑल द सेंटर ऑफ मासेस एंड आई एम गोइंग टू गेट अ लीनियर अरेंजमेंट और मुझे कुछ नहीं चाहिए. बट इफ आई नीड टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब ये है किसी भी जगह टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो आई नीड एटलीस्ट 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स. अगर मैं 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स को डिफाइन कर देता हूं, देन इन दैट केस आई डिफाइन अ प्लेन एंड अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल अरेंजमेंट. ठीक है, तो अगर मैं 3 पॉइंट्स स्पेस में बात करता हूं, तो 3 पॉइंट्स की यूनिक पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे 1 और 2 डिस्टेंस चाहिए और मुझे एक एंगल चाहिए. ठीक है, the minimum number of quantities that I need to define an arrangement are termed as lattice parameters. ठीक है, और arrangement parameters. टू डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए मुझे 3 पैरामीटर्स की जरूरत है, 2 लेंथ और 1 एंगल. ना हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे ए बी एंड अल्फा. मैं ए बी एंड अल्फा की कोई भी कॉम्बिनेशन बता सकता हूं और जितने कॉम्बिनेशन में बताऊंगा उतनी अरेंजमेंट बन जाएगी. You might be tempted to say that there can be infinite arrangements, but practically speaking, there are not infinite arrangements. They are very much finite arrangements. जैसे कि ऑप्शंस क्या क्या है? पहली अरेंजमेंट, I can have A equal to B and alpha equal to 90 degrees. अगर मैं A equal to B, alpha equal to 90 degrees लेता हूँ, then in that case this arrangement simply becomes a square arrangement. ठीक है? Yeah, just do it. Yeah. Okay. So that is what we call as the square arrangement. Okay. What else could be the arrangement? I could have A equal to B, alpha not equal to 90 degree, and alpha not equal to 60 degree. ठीक है? ये दो ऑप्शंस हम रखते हैं. अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट बनाता हूँ, then in that case it's going to become rhombic arrangement. तो देखो यहाँ पर theoretically speaking infinite angles हो सकते हैं, लेकिन वो infinite angles को सब में मैंने एक ही अरेंजमेंट में डाल दिया, अलग-अलग एंगल्स के साथ rhombic arrangement चल सकता है. Further, I could have A not equal to B and alpha equal to 90 degree. Very obviously, it is going to be a rectangular arrangement.
ठीक है, then I could have A not equal to B, alpha not equal to 90 degrees. Obviously it's going to become a parallelogram arrangement. ठीक है, ये हमने अरेंजमेंट्स की बात की। अब एक अरेंजमेंट हमने स्पेसिफिकली छोड़ दी है, and the arrangement that we have already left specifically is where we have taken this angle to be 60 degrees. अगर हम इस एंगल को 60 degrees लेके चलते हैं, then in that case ये अरेंजमेंट एक बहुत ही peculiar अरेंजमेंट बनता है। ध्यान से देखो, इस अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हैं। ये अरेंजमेंट बनती है। अब इस अरेंजमेंट को अगर हम बनाएंगे, अगर इसको एक हिस्से को बाहर निकाल दो, then in that case it's something like this. कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के अंदर I can talk about this arrangement to be a rhombic arrangement. ठीक है, पर उसमें एक कंफ्यूजन है कि मैं rhombus इस वाले का लूं या इस वाले का लूं, क्योंकि दोनों साइड एंगल सेम है, तो ये भी कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए पैरेललोग्राम अरेंजमेंट की बात करता हूँ, तो जैसे मैं एंगल को डिफाइन करता हूँ, वहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन हो जाती है, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं है। अगर मैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लेता हूँ तो ऑब्वियसली वो डिफाइन हो जाता है। अगर मैं रोम्बिक अरेंजमेंट भी लेता हूं तो वहां पे अगर एंगल 60 डिग्री नहीं है तो वो डिफाइन हो जाता है, लेकिन जहां मैंने एंगल 60 डिग्री लिया वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि इस साइड वाला रोम्बस नहीं है उस साइड वाला रोम्बस, क्योंकि वहां पे दोनों एंगल सेम है। फिर फर्दर यहां पे मैं ट्रायंगुलर अरेंजमेंट भी ले सकता हूं, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पर वहां पे कंफ्यूजन ये है कि ट्रायंगल ये वाला या ये वाला। जब भी हम किसी अरेंजमेंट में एक रिपीटिंग यूनिट की बात करते हैं, तो repeating unit is the one which can give the entire arrangement by pure translational motions. ठीक है, तो एक definition लिख लीजिए repeating unit. Repeating unit, a unit which can give the entire arrangement. A unit which can give the entire arrangement by pure translational shifts is termed a repeating unit. By pure translational shifts I mean कि मैंने ऐसे एक यूनिट को डिफाइन कर दिया, ठीक है, I can repeat it in this direction, ऐसे रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, I can repeat it in this direction, this direction, this direction, I can even take it in this direction, any direction I can take, but I cannot tilt it, that is not the goal, ठीक है, ऐसे रखते हुए आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए, लेकिन आप उसको हल्का सा भी टिल्ट नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं कर सकते। अगर ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट सिर्फ ऐसे ही अरेंजमेंट से दे सकता है, ऐसे ही मूवमेंट से दे सकता है, तो ये एक रिपीटिंग यूनिट है। अगर ये घूम के दे रहा है तो ये रिपीटिंग यूनिट नहीं है। अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हो, तो ट्रायंगल इज काइंड ऑफ रोटेटिंग, ये ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये एक रिपीटिंग यूनिट नहीं कहता है। फाइन, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसका रिपीटिंग यूनिट आके माने तो क्या माने। तो यहाँ पर
बी वेरी क्लियर, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिपीटिंग यूनिट हमें छोटा बनाना है। हम रिपीटिंग यूनिट को कितना ही बड़ा बना सकते हैं, कितना ही छोटा बना सकते हैं, बट वी नीड टू सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। तो अब अगर हम इसकी कंडीशन को सैटिस्फाई करने की बात करते हैं तो हमारे पास ये रिपीटिंग यूनिट एक हेक्सागन बनते हैं। तो ये एक हेक्सागोनल रिपीटिंग यूनिट है और ये एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल। तो अगर हम कहीं पर भी टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये 5 अरेंजमेंट आते हैं। A इक्वल टू B, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री या आप अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप हो सकता है सोच रहे हो कि टू डायमेंशनल हमारे पास इनफाइनाइट अरेंजमेंट आएगी, बट टू डायमेंशनल हमारे पास कुल मिला के 5 अरेंजमेंट। ठीक है, once we have talked about the two-dimensional arrangement, we obviously have to go to three-dimensional arrangement। जब हम three-dimensional arrangement की बात करते हैं तो three-dimensional arrangement के लिए हमें 4 non-planar points चाहिए। ठीक है, अगर हम 4 non-planar points define कर दें तो we will define the arrangement in three-dimensional space। अब वो 4 non-planar points के अंदर what would be the lattice parameters that we would require? हमारे पास 4 non-planar points। ठीक है, अब एक बहुत ऑब्वियस सी चीज है, मुझे 3 लेंथ डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, A, B and C, 3 length define करनी। And in addition to 3 lengths, I'll have to define 3 angles। ठीक है, this angle is alpha, angle of C with A is alpha, this angle is beta, and this angle is alpha। ठीक है, to give 3-dimensional arrangement, we need 6 parameters, and these 6 parameters are termed as 6 lattice parameters। Clear? तो 3-dimensional arrangement के लिए I need 6 lattice parameters, और you may also call them lattice constants। तो किसी भी लैटिस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये अल्फा बीटा गामा और ए बी सी हमें डिफाइन करना है, लैटिस डिफाइन हो जाएगा। अब इनके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? फिर आप सोचोगे अगेन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस, बट इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस है नहीं। जैसे कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो सकता है A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। Now this defines a cube। ठीक है, इसी तरीके से इनके कॉम्बिनेशन अगर हम डिफाइन करते चले जाते हैं, then we define actually 7 arrangements। कुल मिला के 7 अरेंजमेंट डिफाइन होते हैं, जिसमें आता है क्यूबिकल अरेंजमेंट, रोम्बिक अरेंजमेंट, ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट, मोनोक्लेरिक अरेंजमेंट, ट्राइक्लिनिक अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है, एंड रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट। तो हमारे पास ये 7 अरेंजमेंट्स आते हैं। These 7 3-dimensional arrangements are termed 7 point groups, because they are groups of points, so these are termed as 7 point groups। ठीक है, क्लियर? जितनी भी कोशिश कर लो, कैसे भी बना लो, अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट बनाते हो पॉइंट्स की, तो आप इन 7 से ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं बना सकते। सारी अरेंजमेंट इन 7 में डिफाइन हो जाएगी। अब हाउ टू
realize यानी कि how to actually make these 7 arrangements. इन 7 arrangements को बनाने के कुछ तरीके. For example, let us say हम एक particle लेते हैं इस तरीके से. So I have just defined a cube. ठीक है? I have just made a cube. अब इस क्यूब को तो मैंने बना दिया. अब इस क्यूब को बनाने के कई तरीके हैं. जैसे कि हो सकता है मैं इस पूरे क्यूब के बीच में एक और पार्टिकल डाल दूं. ये अभी भी क्यूब रहेगा. लेकिन अब ये पहले क्यूब जैसा नहीं है. There is a possibility कि मैं हर क्यूब के फेस के सेंटर में एक पार्टिकल डाल दूं. ये अभी भी क्यूब रहेगा, लेकिन ये पहले वाला क्यूब नहीं रहेगा. तो क्यूब बनाने के ही मेरे पास 3 तरीके हैं. ठीक है? The different arrangements of particles are termed as lattices. A mathematician, देखो ये जो काम मैं बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री नहीं, अरेंजमेंट्स है. कैसे भी अरेंजमेंट बना दो, मैथमेटिकली बना दो, ड्राइंग पेपर पे बना दो, कोई पार्टिकल लेके बनाना जरूरी नहीं है. तो जब इन अरेंजमेंट्स को बनाया गया, तो a mathematician made these arrangements. His name was Bravais. Bravais made 28 maximum 28 arrangements. इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता. Out of those 28 arrangements, he himself cancelled 14, considering them not proper. यानी कि ऐसी arrangement theoretically आप बना सकते हो, लेकिन practically ये नहीं बन सकते. तो उसने 14 arrangements को cancel out कर दिया. बची 14 arrangements. So these 14 arrangements are called 14 Bravais lattices. ठीक है? These 14 Bravais lattices are distributed in 7 point groups. जैसे cubic point group के अंदर 3 arrangements हैं. ठीक है? Orthorhombic में फिर से 3 arrangements. Triclinic में 1, monoclinic में 1. इस तरीके से ये 14 Bravais arrangements are distributed in 7 point groups. ये बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, सीधे सीधे फैक्ट्स की बात करते चले. ये हम अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं. Out of these 14 arrangements, we are supposed to do 4 arrangements in detail. In fact, we are just going to complete one point group, that is cubic point group, and in addition to that, we are going to do one arrangement of hexagonal. ठीक है? क्लियर? अब हम इन 14 पॉइंट ग्रुप में से 4 पॉइंट ग्रुप की बात करें. सबसे पहले we are going to start with the cubic point group. ठीक है? अब cubic arrangement can be obtained in a very simple manner. Let us say हमारे पास square 2-dimensional arrangement. उस square 2-dimensional arrangement पर हम एक और square arrangement को fit कर देते हैं. ठीक है? We are going to have these 1, 2, 3, 4. ये square बन गया arrangement. अब इसके ठीक ऊपर हम 4 spheres और रख देते हैं. We get a cubic arrangement. ठीक है? अब ये जो क्यूबिक अरेंजमेंट है, इसमें इट विल बी, क्यूब बना दे छोटा सा.
ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है? पूरा है कंफ्यूजिंग? ठीक, वो अच्छा तो भाई सालों में प्रैक्टिस है तब भी ऐसा ही बना है। वो मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही माशाल्लाह तो समझ में आने लायक बन चुका है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सुंदर होता है। पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि I have actually made 8 cubes। ऐसे मुझे एक ही क्यूब की जरूरत थी, पर 8 क्यूब मैंने इसलिए बना दी क्योंकि हमें पूरा पूरा एक बड़ा अरेंजमेंट बनाना है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट मैं नहीं बना सकता, तो सिर्फ 8 बना सकता। ठीक है, अब इस क्यूब के अंदर ये पार्टिकल्स हैं। अब देखो मैं इसको बड़ा बड़ा भी बना सकता हूँ, लेकिन बड़ा बड़ा बनाने में सिर्फ ये एक बल्कि सा बन जाएगा, एक गंदा सा बन जाएगा, दिखाई कुछ नहीं देगा। तो आई एम जस्ट मेकिंग इट ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास बना है। So these are the particles which are arranged. ठीक है, वो ये ठीक है। हम इस पूरे अरेंजमेंट को बना सकते हैं। We can make this entire arrangement by just repeating one of the cube. एक क्यूब को अगर हम रिपीट करते चले जाएं तो ये पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है, the simplest three-dimensional unit which can give the entire lattice when repeated by only translational way is termed as a unit cell. Okay. The smallest or the simplest three-dimensional unit which on pure translational repetition gives the entire lattice is known as the unit cell. Now I believe this is a much more beautiful specimen as compared to this. ठीक है? नहीं देखो, मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं, मुझे पता भी है कैसे। मैंने इसको अलग-अलग कलर्स से डिनोट किया just to distinguish this. ठीक है? बाकी otherwise these are exactly identical. यहाँ पे सारे के सारे जो स्ट्रिप्स हैं, they are exactly same length. Colors different है just to show कि हाँ ये अंदर का है, ये बाहर का वगैरह। ठीक है? So this is the three-dimensional arrangement. यहाँ पे भी देखो 8 क्यूब्स हैं। इसमें से किसी भी क्यूब को मैं एक यूनिट सेल कह सकता हूँ। सारी क्यूब्स एग्जैक्ट आइडेंटिकल। ठीक है? So this is a unit cell. This is a cubical unit cell. ठीक है? So ये 8 क्यूब्स मिलके this becomes a simple cubic arrangement. अब जब हम सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर we can now talk about certain facts. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि all the particles nearest to each other are actually
touching each other. ठीक है? All the particles nearest to each other are actually touching each other. ठीक है? अब क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि each particle इस पूरे लैटिस में each particle will be touched by how many other particles? This is termed as the coordination number. Write the definition. Coordination number. The number of nearest particles. The number of nearest particles to a given particle. और वैसे ये particles actually atoms होते हैं. The number of nearest atoms to a given atom, that is the number of atoms actually touching it. The number of atoms actually touching it is termed as the coordination number. Is termed as the coordination number. Okay? So, what would be the coordination number of each particle in a simple cubic arrangement? Let us say हम इस particle की बात करते हैं. So, how many particles are nearest to it? मुझे आवाज आ रही है 8 की और 8 बोलने वाला एकदम से 8 बोल चुका है. 8 ओके गुड. कौन है 8 वाला? देखते हैं 8 and 9 पूरी लगी है. और भाई 9 1 9 2 9 से ज्यादा कोई 12. वेरी गुड वेरी गुड. आजा बाहर चलिए जल्दी आ बाहर आ. मजाक नहीं कर रहा. आजा बाहर. एक हमें नियरेस्ट पार्टिकल्स कहते हैं. नियरेस्ट ग्रीन सारे पार्टिकल्स नहीं गिनते. ये एक पार्टिकल सेट है. इसके नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स? 1 2 3 4. क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है? अगर ये बराबर, एक मिनट थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात करते हैं. सिंपल मैथमेटिक्स. 2 spheres are touching each other. बेटा मैं गिनती पूरी नहीं हुई. अभी वापस करें. 2 spheres are touching each other. ठीक है? मैथमेटिकली इसे कैसे प्रूव करोगे? The distance between the centers is the sum of radius. Got it clear? तो जब दो स्फीयर एक दूसरे पर टच करते हैं तो वो डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, वेरिएबल नहीं. ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई ये स्फीयर टच कर रहे हैं तो ये भी पास में है तो ये भी टच मान लेते हैं. नहीं, हम नहीं मान सकते. क्लियर? अगर ये टच कर रहे हैं तो वेरी ऑब्वियसली ये टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस, अगर इनका डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के बराबर है तो इनका डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर कैसे हो सकता है? इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो ये टच नहीं कर रहा. और बेटा अगर ये टच कर रहा है then the answer is not going to be 12. Answer is going to be 14. ये 6 तो ये रेड वाले से जो डिनोट हो रहे हैं वो 6 है. और ये जो अगर ये ले रहे हो तो ये कॉर्नर आर बीइंग डिनोटेड बाय देयर आर 8 कॉर्नर्स. 6 ये 8 ये तो 14 हो जाएगा. ऐसे क्या समझ में आई बात? So here the answer is exactly 6. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से पार्टिकल की बात करें. ये पार्टिकल तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इस पार्टिकल के आसपास सारी की सारी क्यूब्स थी. बाकी अगर तुम ये वाला पार्टिकल लेके चलते हो तो ये भी एक क्यूब का पार्ट है. यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट बनेगा.
सो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख सकते हो, the coordination number of each particle, the coordination number of each particle in a simple cubic arrangement, the coordination number of each particle in a simple cubic arrangement is 6, ठीक है। Now, a coordination number, जिसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, इस coordination number के बाद एक और चीज है। देखो, ये जो पार्टिकल है जो सेंटर में है, ये पार्टिकल, अब मेरे देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ इन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और इन्हीं स्टेटमेंट्स में तुम गलती कर सकते हो। जैसे आई एम टेलिंग यू वन लिटिल थिंग, आईआईटी के लिए केमिकल काइनेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर बोथ आर वन चैप्टर ईच, and IIT gives one question from each chapter. काइनेटिक्स से भी एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन था इस बार IIT मेंस में, और सॉलिड स्टेट से भी एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो although this is a very easy chapter, please don't underestimate. क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, अगर गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। अब मैं जो बोल रहा हूँ इसका ध्यान रखना। हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन 6 था, क्योंकि 6 पार्टिकल टच कर रहे थे, क्लियर। और दूसरा सवाल, ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल्स का पार्ट है? ये इस क्यूब के कॉर्नर पर है, और क्यूब का कॉर्नर 8 क्यूब्स का कॉर्नर। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्नर हर किसी के लिए कॉमन है, क्लियर। The particle present on the corner of cube is a part of 8 cubes, that is, it is a part of 8 unit cells. Is it clear? Okay. It is as if that this particle, this particular person is working in 8 companies at the same time. तो अगर वो पर डे 8 घंटे काम करता है तो वो किसी भी कंपनी को 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता, वो हर किसी में 1 आवर ही देगा, यानी कि ओवरऑल इसके पर डे का टोटल वर्क का वो हर कंपनी में सिर्फ 1/8 देगा। इज इट क्लियर? द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन हो गया ना, the contribution of each particle present on the corner of a cube is 1/8 of its total contribution, यानी कि 1 का 1, इसका total contribution में 1 था। Is that clear? ठीक है, clear? ये बात लिख लीजिए। The contribution of each particle, the contribution of each particle present on the corner of a cubic unit cell, present on the corner of a cubic unit cell is 1/8. Which is एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, contribution is equal to 1 divided by number of unit cells of particle is part of, अगर वो एक ही यूनिट सेल का पार्ट है तो कंट्रीब्यूशन विल बिकम 1, और 2 का पार्ट है तो बिकम 1/2, 4 का पार्ट तो 1/4, 6 का पार्ट तो 1/6, 8 का पार्ट तो 1/8। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी कंफ्यूजन?
the contribution. Now, what will be the total contribution of the particles forming a simple cubic unit cell in a unit cell? देखो, हर कॉर्नर पे पार्टिकल है और हर पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन 1/8 है। एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। So the total contribution, which is generally represented by Z, is equal to 8 into 1/8. Is equal to 1. The total contribution in a simple cubic unit cell is 1. Any confusion, sir? The total contribution to the simple cubic unit cell is 1. अब एक और छोटी सी चीज है, ये जो क्यूब है इसकी एक एज की लेंथ कितनी हो in terms of radius of the particle which are making it 2r, क्योंकि ये particles एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे the edge length which is represented by a is equal to 2r. ठीक है? What will be the volume of the cube? It has to be r cube. ये a cube and a cube a is equal to 2r. It will be 8r cube. ठीक है? अब हम एक और छोटी सी चीज की बात करते हैं, डेंसिटी। एक बार फिर समझो, डेंसिटी इज एन इंट्रिंसिक क्वांटिटी। इंट्रिंसिक क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी है वही पूरे लैटिस की डेंसिटी भी है। Whatever is the density of the entire lattice, यानी कि अगर आप सोडियम क्लोराइड का आपको एक क्रिस्टल दे दिया जाए और आप उसकी डेंसिटी निकाल देते हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड के पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी है वही उसके यूनिट सेल की भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला है Z into mass of the atom। ठीक है? अब mass of the atom कौन ढूंढता है? What we do is we make it molar mass divided by Avogadro's number। ठीक है? So this becomes the mass of the unit cell, volume of the unit cell। ठीक है? For a simple cubic arrangement, the density would become molar mass of the substance divided by the Avogadro's number multiplied by 8r cube। ये simple unit cell, simple cubic unit cell की density है। ठीक है? ठीक है? अब एक और टर्म है जिसे बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है? डेफिनेशन लिख लीजिए। The fraction of the total volume, the fraction of the total volume actually occupied, the fraction of the total volume actually occupied by the particles is termed packing efficiency. Is termed packing efficiency. ठीक है? अब एक चीज समझो, we are arranging spheres। अगर आप spheres को अरेंज करते हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उनमें खाली जगह ना बचे। उनमें खाली जगह जरूर बचे, and therefore the efficiency will always be less than 1।
ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, देखो एक वर्ड होता है किसी किसी किताब में या किसी किसी जगह पैकिंग फ्रैक्शन भी लिखा होता है। अवॉइड दिस टर्म क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पैकिंग फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर वर्ड इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो जब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला है Z, that is the contribution, multiplied by the volume of the sphere, ठीक है, divided by the volume of the unit cell. This is the formula for packing efficiency. Is it clear? Any confusion? Okay. जरा सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो जल्दी करो या सॉल्व करो जतिन सॉल्व कर पता है मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होती जब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है और कई बार बकवास क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है, तो तकलीफ नहीं, मैं उसको जवाब देता हूं। तकलीफ तब होती है जब स्टूडेंट सॉल्व किए बिना आंसर देता है और अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझता है क्योंकि वो आंसर गलत होता है। हाँ बाय बाय। This efficiency is for simple cubic arrangement is pi by 6, ठीक है, which nearly turns out to be 52%. समझे? अब एक छोटा सा सवाल, ठीक है, देखो balls having a volume of balls having a volume of 1 decimeter cube, balls having a volume of 1 decimeter cube are packed in cubical boxes. Balls having a volume of 1 decimeter cube each are packed in cubical boxes. ठीक है? Calculate the maximum number. Calculate the maximum number of such boxes which can be packed in a box having a total volume, of 1 meter cube. Which can be packed in a box having a volume of 1 meter cube. It does not mean it has to be 1 meter. उसकी वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है, क्लियर? किसी भी तरीके से डायमेंशन आप सेट कर सकते हो। I'm asking you what is the maximum number of boxes that you can pack in such a box which has a volume of 1 meter.
बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना। एक मिनट, बॉक्स का वॉल्यूम फिटिंग है बॉल, मतलब कि जो भी बॉल का डायमीटर है दैट इज द एज लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है, एंड यू कैन कंसीडर द मटेरियल ऑफ द बॉक्स टू बी नेग्लिजिबल बॉल, ठीक है। हाँ, एक बॉक्स में एक बॉल लिखा क्या है, each ball is packed into a cubical box. अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखा था दोबारा? Boxes. ठीक है, ओके, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। There is one ball in each box. जैसे मतलब मेरे को लग रहा था क्लियर है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। 523. क्योंकि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो पाई बाय 6 एक्चुअली कम्स आउट टू 52.3। नहीं यार, तुम भी ना बहुत देर लगाते हो, बहुत कंफ्यूजन कर देते हो एक सिंपल सी क्वेश्चन। ये ना मैंने 1000 कर दिया ना, तो एक डेसिमल प्लेस और आ सकती है, ठीक है। एनीवे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आया तो वहां पे 520 होगा, 740 होगा, 680 होगा, ये ऑप्शंस होंगे, तो यू कैन इजीली मार्क इट 520। अब कैसे आया बता दूं, सुनो। ये जब हम क्यूबिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं, देखो ऐसे आए, हम इसको हर किसी को ऐसे क्यूबिकल बॉक्स में अरेंज मान सकते हैं, ठीक है। तो वेरी ऑब्वियसली एक क्यूबिक सिंपल क्यूबिक पैकिंग में जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी एग्जैक्टली वही है, कैलकुलेशन तो आपने किया हुआ है। फिर उसे क्यों कर रहे हो ऐसे? अब समझ में आया एफिशिएंसी का मतलब, कि अगर एक मीटर क्यूब बॉक्स में जिसकी वॉल्यूम 1000 डेसीलीटर क्यूब है, उसमें अगर तुम बॉल्स को इन बॉक्सेस में पैक करके रखते हो तो यू कैन नॉट पुट मोर देन 523 बॉल्स, बाकी जगह खाली है, ठीक है। मैंने बॉक्सेस इसलिए बोल दिया था क्योंकि बॉक्सेस के अंदर वो क्यूब उन बॉल्स की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दे हैव टू फॉर्म अ क्यूबिकल अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? समझ आई ये बात? तो देयर कुड बी अ वेरी मैथमेटिकल लुकिंग क्वेश्चन given to you which would be solved like this using chemistry। ऐसे ये जो आप कर रहे हो केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स ही है, पर केमिस्ट्री में रहेगा। आप समझ में आया एफिशिएंसी का मतलब थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी टर्म एज अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट।
ठीक है, कुछ पूछना है आप? Okay, let's talk about another arrangement. Now this arrangement is termed as a body-centered arrangement. Body-centered arrangement. Body-centered arrangement again एक सिंपल सी अरेंजमेंट है। इसके अंदर हमारे पास एक क्यूब है, the particles are placed on the corners, and in addition to the particles at the corner, a particle is placed right in the center of this cube. The important thing is that all these 9 particles are exactly identical. ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अगर हम 8 फुटबॉल्स को यूज करके एक क्यूब बना दें, तो 8 फुटबॉल्स के सेंटर में एक खाली जगह होगी है, लेकिन वो जगह इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें एक फुटबॉल डाली जा सके। It is smaller than a football. अगर उस खाली जगह में जबरदस्ती में एक फुटबॉल डालने की कोशिश करता हूं, and mind it, we have considered that these spheres are rigid, non-compressible spheres, तो इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर इनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी और मैं इसको जबरदस्ती बीच में डालूंगा, तो ये जो पार्टिकल्स एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में एक दूसरे को टच कर रहे थे, अब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। Is it clear? The distance between these two particles is going to become more than 2r. Is it clear? ठीक है? और ये है अभी भी क्यूब। Now this cube is termed as a body-centered cube, and an arrangement which has a body-centered cube as a repeating unit is termed as a body-centered arrangement, a body-centered cubic arrangement. इसको BCC लिखते हैं। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? ये बात क्लियर हो गई? अब आपको मुझे बताना है इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का सबसे पहले वही सिस्टम सारे के सारे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच पार्टिकल। लेट्स से वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेशन क्या है? इस वाले पार्टिकल कोऑर्डिनेशन देखो, मैं हर चैप्टर में आपको ये बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपस में डिस्कस मत करना, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। ठीक है? इस चैप्टर में कितनी ही टेम्पटेशन हो, साथ वाले से बिल्कुल मत पूछो और ना ही साथ वाले को बताना। कारण ये है, ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत कंफ्यूज है। तुम्हें शायद कंफ्यूजन अभी तक दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है। वही डाउट एग्जैक्टली डायरेक्टली पूछ वो इम्पोर्टेंट। ठीक है? व्हाट डिड आई आस्क? आई आस्क्ड कोऑर्डिनेशन। आई आस्क्ड यू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट टच द गिवन पार्टिकल। ठीक है? इसको कितने पार्टिकल टच करेंगे? रमन उसमें है। देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये और ये टच नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे, ये इसे टच कर रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से ये सारे अलग हुए हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स इसे टच कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ठीक है? The coordination number of the particle in the center of the cube of a cubic simple or body-centered cubic arrangement is 8. Clear? Now, ये जो particle corner पर है,
इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा? इस ऑर्डर वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन क्या होगा? ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है वो कितने क्यूब्स का पार्ट है? उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी की पूरी अरेंजमेंट बॉडी सेंटर्ड क्यूब की है। तो जितने भी क्यूब्स का ये पार्ट है उन सब क्यूब्स के सेंटर में एक पार्टिकल है और जितनी क्यूब्स के सेंटर में पार्टिकल है उन सबको ये टच करेगा। तो ये कितने पार्टिकल्स को टच करेगा? इनफैक्ट अगर मैं इसके आसपास वाली 8 क्यूब्स के क्यूब सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो वो एक क्यूब बन जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी द सेंटर ऑफ दैट क्यूब। एक्चुअली स्पीकिंग हम किसी भी पार्टिकल को क्यूब सेंटर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? हाँ What are you accommodating? Is that clear? So I can simply say that the coordination number of each particle in a body-centered cubic arrangement is 8. कोई confusion? ठीक है? Okay. ये तो हमने coordination की बात की. Now let's talk about contribution. Again, contribution. What will be the contribution of this particle? 1. It is in the center of the cube. It is completely the part of one cube. वो किसी और cube से share नहीं. तो इसका contribution 1. इसका contribution कितना है? 1/8. तो इस total unit cell के अंदर total contribution कितना है? 2. डाउट है या समझ में आ गया? नहीं आ रहा। इसका 1 है, ये समझ में आ गया। इसका 1/8 है, कॉर्नर 8 है, सेंटर 1 है। It becomes 1/8 multiplied by 8 plus 1. So the total contribution is 2. Is it clear? Okay. अब एक छोटा सा सवाल। If the radius of each particle is r, then what is the edge length of this cube? एक ही वैल्यू पूछी, cannot be है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें cannot be determined कहीं पे आंसर नहीं आएगा। और तो 2r सॉल्व करके आंसर लिखते हैं। सॉल्व करके आंसर 4/2 सॉल्व किया नहीं किया क्या है ये क्या है? ये दूसरे का रजिस्टर है।
यार अपने रजिस्टर में क्यों नहीं छाप रहे? ये देखो तुक्के तो मारूंगा, जरा सॉल्व करे आप। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं है, इतना लंबा कैलकुलेशन ही नहीं है। नहीं सर का मतलब ही नहीं है, गलत ही आएगा, छोड़ो। इधर ये तीन पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है? These are the particles at the body diagonal of the cube, ठीक है? सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, the body diagonal of a cube is √3a. A is the x-length. Is it clear? ठीक है? Now this length is r, this is r, this is r. ये बात समझ में आई? This is r, this is 2r, and this is r. So overall body diagonal is 4r. Clear? So this is equal to 4r. इसका सीधा सीधा मतलब है A is equal to 4 by √3r. Clear? समझ आई ये बात? So this is the edge length. Clear? अब इस edge length को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपको डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है? और इस edge length को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी. So quickly find the expression for density and the value of efficiency. जल्दी करो. Efficiency or density? एक्सप्रेशन बता मुझे पाई के टर्म्स एक चीज होती है जिसे कहते हैं आंसर्स रटे हुए. अगर आपको आंसर्स रटे हुए हैं बोर्ड्स में यू विल डू गुड, ठीक है? पर आईआईटी मेंस भी भूल जाओ. You need to know how to get the answers. The efficiency comes out to be √3 pi by 8. Under √3 pi by 8. That is the expression you get. अगर इस एक्सप्रेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो you get the value 68%. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में अरेंज होता है then in that case इसमें 32% जगह खाली है और 68% जगह ऑक्यूपाइड है. इसे क्लियर? अगर पिछला क्वेश्चन हमने किया होता कि the balls are arranged in a body centered cubic arrangement, then the answer would have turned out to be 680 balls. Is it clear? कोई कंफ्यूजन? जितना बोर्ड पे लिखा है उसमें कुछ पूछना है?
Okay, now we have made a cube. अब इस क्यूब में जब हम पार्टिकल्स प्लेस करते हैं तो प्लेस द पार्टिकल यहाँ पे particles are placed at the corner of the cube and at the face center. ठीक है? This is a face centered cubic arrangement. ठीक है? इसकी अगर हम बात करें तो we have a particle at the corner and at the center of these blue straws. तो blue straws के जो बीच में जिस पॉइंट से ये अटैच है वहां पे पार्टिकल है और जहां पे येलो वाले कॉर्नर बना रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल है, बाकी कहीं नहीं, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है. ठीक है? This is what we know as a face centered cube. Clear? And we are going to have this repeating. तो इसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. क्लियर? अब आपको मुझे इसकी सारी की सारी वैल्यूज पता है. पहले वी विल टॉक अबाउट quickly, tell me. वैसे I think इससे ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है. अब मैंने ज़्यादा अच्छी पढ़ी. Answer.
ये सारी बातें लिख दे। Okay, let me tell you the answer. अब एक बात सुनो, हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है? अब एक efficiency, okay now, यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये जो पार्टिकल है ये फेस के सेंटर में है। फेस के सेंटर का मतलब ये है कि इट इज अ पार्टिकल हियर, अ पार्टिकल हियर, हियर, हियर एंड हियर, ठीक है? सो दिस पार्टिकल इज टचिंग दिस वन, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ध्यान से बताना। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में से, दिस इज द डिस्टेंस A, दिस इज द डिस्टेंस B, which one is greater? Very good. अब देखो, सुनो जरा ध्यान से सुनना। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, and A is the diagonal of this square. कोई confusion? कोई confusion? Okay, good. ये एक स्क्वायर है ना? And B is the diagonal of this square. है या नहीं है? है। इन दोनों स्क्वायर में ये साइड कॉमन है। अगर दो स्क्वायर्स की साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, है ना? तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड्स as well as diagonals will be equal, है या नहीं? तो A is exactly equal to B. और अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो जरा यहाँ देखो, ये डायगोनल है और वो ये डायगोनल है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल है। तो दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल हैव टू बी इक्वल। अगर ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी ट्वाइस ऑफ रेडियस है। और अगर ये पार्टिकल से टच कर रहा है तो वेरी ऑब्वियसली ये पार्टिकल से भी टच कर रहा है। क्लियर? 1 2 3 4 ये टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये टच कर रहे हैं। और मजेदार बात ये है, ये सिर्फ एक क्यूब नहीं है, इसके ऊपर भी क्यूब है। तो अगर इसके ऊपर भी क्यूब है तो यही लेयर इसके ऊपर भी तो होगा,
चार इस लेयर में भी होंगे। बेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर इज ये समझ आया? The coordination number in a base-centered cubic arrangement is 12. Yeah. Contribution. I think that was very obvious. Base वाले contribution half है, क्योंकि base दो क्यूब से शेयर है। इसका total contribution becomes 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2. 6 फेस होते हैं। Total is 4. अब बात करते हैं edge length। This is 4r, and this is the diagonal of a square. So root 2a is equal to 4r. So a is equal to 2 root 2r. Clear? ठीक है? Density निकालोगे, efficiency निकालोगे, efficiency is आप चाहे तो pi by root 2 और pi by 3 root 2 लिख सकते हैं, root 2 pi by 6 लिख सकते हैं। बात एक ही है। ये आता है, और एक बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, स्फीयर को पैक करने की इससे ज्यादा एफिशिएंसी हो नहीं सकती। दिस इज द हाईएस्ट एफिशिएंसी। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हाउ मेनी बॉल्स ऑफ 1 decimeter cube each can be packed in a box having a volume of 1 meter cube, then the answer cannot be more than 740. Is it clear? The maximum value is 740. और be very clear, इस efficiency का size से कोई लिंक नहीं है। चाहे आप पूरे के पूरे 1 मीटर क्यूब पे फुटबॉल्स पैक करो, चाहे उसके अंदर बॉल बेयरिंग्स पैक करो, चाहे आप चावल के दाने पैक करो, चाहे मटर के दाने पैक करो, चाहे सरसों के छोटे छोटे राई के दाने पैक करो, the efficiency will be exactly this. इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं। समझ आई बात? इसका साइज से कोई लिंक नहीं है।